everyone, welcome to Tarot Arc. Thank you so much for joining today's session and I'm Anandita and आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो a big thank you for all the messages and feedback and a lot of you shared the channel and sent me screenshots of that. Thank you so much. Screenshots की ज़रूरत नहीं है. I mean, you know, the very fact that you've done it, thank you so much. And thanks for joining the last live session. I'll be coming back with more live sessions soon. So today's reading is another pick a card reading और ये रीडिंग आपको बताने के लिए है कि राइट नाउ आपकी और आपके पर्सन की इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, कोई ऐसी बात जो वो आपसे छुपा रहे हैं या कोई ऐसी इंटेंशन जो आप तक नहीं पहुंच रही है. अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं तो वेदर देयर इज़ रिकन्सिलिएशन ऑन द कार्ड्स और नॉट. सो एवरीथिंग जो भी मैं आपको बता सकती हूँ रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू. Whether you, whatever you want to know about your relationship, I'm going to try and cover a lot of things in this relationship reading. प्लीज़ याद रखिएगा कि ये अभी की सिचुएशन को पर्टेन करते हुए एक रिलेशनशिप रीडिंग, एक रिलेशनशिप स्प्रेड मैं आप लोगों के लिए करूँगी, वेर इन यूल नो everything about your person's feelings, intentions, next move, whatever is on their mind, और यहाँ तक कि इस सिचुएशन का अब फाइनल आउटकम क्या होगा. So please remember that these are general readings. They may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates with you and leave the rest. I've mentioned the timestamps in the description box. That's going to help you to, you know, find your chosen pile. And since I haven't mentioned the piles, so let me just do that once more. Let me just tell you the piles once again. I haven't shared it with you right now. So before we move forward, let me just share the piles with you so that you can take your time and choose your pile. Also remember that before you choose your pile, please focus on your person, please focus on your relationship. ऐसा ना हो कि आप randomly, abruptly ये pile choose करें. Take your time, see the piles, see the crystals, whatever suits you. I would suggest please choose the piles according to the crystals, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी सारे डेक्स यूज़ करूँगी. ये हमारा स्पेशल मैसेंजर डेक है. दीज आर जस्ट फॉर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. और उनकी क्या इंटेंशंस है क्या आपको नहीं पता. दीज आर अगेन वेरी डिवाइन एंजल मैसेजेस मेंट फॉर रिलेशनशिप्स. क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में आगे, एंजल्स ब्लेसिंग्स. I'll be using these also and a lot of other relationship spreads, relationship cards. So do not just focus on these cards or the piles, focus more on the stones. So ये है pile number 1 the white agate crystal, ये है pile number 2 the peach moonstone crystal, और ये है pile number 3 the green jade crystal. Take your time, choose the pile, think about your person before you choose the pile. And I hope the reading is helpful and I hope the reading resonates with you. And again I would say before moving forward, please do like, share and subscribe my channel and keep commenting. Let me know if the readings are resonating with you. So I hope you've chosen your piles and I'll see you at your respective pile. So ये है pile number 1 जिन लोगों ने चूज़ करी है the white agate crystal. आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, what's coming to you in the relationship, what's their next move. पीपल who've chosen pile number 1, फर्स्टली आपके पर्सन और आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो वेयर मे बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर हैव बिन हर्ट. हो सकता है लोगों का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है आपके रिलेशनशिप में. आपके पर्सन काफ़ी हद तक यू नो परेशान कहूँगी, एंग्जाइटी में है, ये सोच करके कि मे बी किस एफर्ट की कमी रह रही है इस रिलेशनशिप में. ऐसी क्या रुकावटें आ रही हैं दैट थिंग्स आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग, थिंग्स आर नॉट कमिंग टू द चेंज जैसा कि वो चाहते हैं. ऑल्सो एक कंट्रोल नहीं है. यू नो आई कैन क्लियरली सी दैट जिस तरह से वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या आप चाहते हैं या आप एज अ कपल इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स,
एक कंट्रोल नहीं आ पा रहा, और वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि शायद यू नो maybe, especially if you're a female who's watching this reading, maybe your person is feeling that you are coming under the pressure of your family or your relatives or society, और शायद इसीलिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील दैट आप लोगों को एक आपके और आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम सोचने में या डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे दे वांट टू हैपन. योर पर्सन डेफिनेटली फील्स दैट यू आर द राइट वन फॉर देम, बट क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, क्योंकि उनके मन में ये थॉट्स हैं दैट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड, द जो इस रिलेशनशिप में फुल एंथुजियाज्म या एक फुल पावर होनी चाहिए थी वो नहीं है. There's a lot of stagnancy on the cards. मे बी आपके पर्सन के भी एफर्ट्स अब बहुत कम हो गए हैं इस रिलेशनशिप की तरफ. यस, आई कैन डेफिनेटली सी कि चीज़ें रुक रुक के चल रही हैं. एंड द पर्सन, इफ़ यू आर अ वुमन हु इज़ वॉचिंग दिस पाइल, दैन स्पेशली द पर्सन हु इज़ ऑन योर माइंड, उनकी इंटेंशंस बहुत साफ हैं आपके लिए, बहुत क्लियर हैं. दे वांट टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड, बट शायद उनके इंटेंशंस और उनके एक्शंस में आपको एक फ़र्क लग रहा होगा. एंड दैट्स बिकॉज दे फील दैट चीज़ें इतनी रुकी हुई हैं, वेदर इट्स गोइंग टू इतना एफर्ट डालना ठीक भी रहेगा या नहीं रहेगा. योर पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स थिंग्स टू हैपन ऑन देयर ओन. दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, एंड दे वॉन्ट कि जितना एफर्ट उन्होंने इस रिलेशनशिप में डाला है आप भी उतना डालें, या आप कम से कम दिखाएं तो सही उनको दैट यू आर बॉदर्ड, you are taking out time for the relationship. Your person is very confused at the moment. Their person is very confused about the outcome of this relationship. They feel that whether they love you, whether they show you whatever they have in their mind, उनकी intentions काम नहीं कर रही हैं, because there's a lot of difference in your actions and your person's actions, and that's definitely hurting them. उनकी expectations hurt हुई हैं. So now your person has just left everything to the universe. Your person has left everything to the Almighty. They are hoping for a new beginning. They are hoping for a miracle to happen, but their efforts are now very limited. जितना शायद वो पहले एफर्ट डाल रहे थे, अब उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है in this situation. Your person is trying to find you. Your person is trying to look for you. They're trying to make that effort of finding a miracle out, but they are definitely afraid to contact you. The cards are clearly saying I'm afraid to contact you, and I have also just lost myself. कहीं ना कहीं इस पूरे एफर्ट को डालते हुए आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद वो खो गए हैं लोगों में, खो गए हैं भीड़ में. दे आर नॉट बीइंग एबल टू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम यू, एंड दे वांट टू शेयर उनके मन में क्या है. उनके मन में जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं. Everything, all the old memories they are trying to remember. Maybe for a lot of you are in a no contact relationship, तभी इसलिए इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन को कि that they think of you, they stay awake thinking about you, they are trying to find you, but they are also very afraid to contact you, and your person is feeling that whether you and your person will be together again or not. So yes, definitely there is a sign of a no contact relationship for you. आपके पर्सन के मन में बहुत है कि वो आ जाएं, फ्लावर्स लेकर आ जाएं, आपको फिर से ट्राई करें, प्रपोज करें, अपनी फीलिंग्स आगे सामने रखें आपके. पर क्योंकि आपके पर्सन के एफर्ट्स शायद पास्ट में नहीं देखे गए हैं, या उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला है, या मे बी वो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है आपकी साइड पे आपके पर्सन का, तो वो थोड़ा सा हर्ट होकर के पीछे हट गए हैं. अब वो खुद ही एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, वो खुद ही किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि अपने आप ही चीज़ें आपके और आपके पर्सन के लिए सॉल्व हो जाएंगी. दैट्स व्हाट योर पर्सन इज वेटिंग फॉर, दैट थिंग्स शुड जस्ट गेट रिजॉल्व ऑन देयर ओन. मे बी they are feeling that universe will guide you in that direction. And yes, definitely 2 months from now I see a big change in this relationship. I see contentment, I see commitment on the cards, but also मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शायद आपको एक एफर्ट डालने की ज़रूरत है. शायद आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है. फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर
वन, बिकॉज आपकी तरफ से देर इज़ डेफिनेटली अ लैक ऑफ कमिटमेंट, अ लैक ऑफ कंटेंटमेंट, अ लैक ऑफ एफर्ट. अगर आप भी अपने पर्सन के साथ एक फैमिली लाइफ, एक न्यू बिगनिंग, एक सिक्योर कमिटेड रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, then definitely it's time for you to call out the shots. It's time for you to take that action. Start afresh. एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करिए अपने पर्सन के साथ. आपके पर्सन की इंटेंशंस बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, प्योर हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स में शायद आपको इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज वो पहले ही ये एफर्ट कर चुके हैं. they've already gone that extra mile. So the cards are saying that you need to go for it. You need to work on this situation and continue to watch over yourself, your relationship, your person, and अपने इस पाथ पे डटे रहिए. अगर आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं, देन वेदर इट्स अ स्ट्रगल, चाहे वो 2 दिन की स्ट्रगल है, वो चाहे 4 दिन की स्ट्रगल है, चाहे 1 साल की स्ट्रगल है, इट्स फॉर यू एंड योर पर्सन. इट्स फॉर यू, यू नो, आप चाहते हैं ये, इसीलिए आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं. आप अपने पर्सन को पसंद करते हैं, उनके साथ अट्रैक्टेड हैं, उनकी तरफ उनको कुछ मानते हैं. दैट इज़ द रीज़न यू आर in this struggle. You know, it's not for somebody else but for your own self. So it's okay, the struggle is real, but your efforts need to show that you are putting in the effort and you are also keen to be with your person and to, you know, spend life with them, or, you know, get into a committed relationship with them. Take control of this situation. Contentment aa raha hai aapke upar. Your efforts will be also rewarded and miracles will come soon. बट डोंट गेट ओवरबर्डन इन दिस सिचुएशन. छोटा छोटा सक्सेस आपको मिलता रहेगा. दिस पार्टनरशिप इज़ डेफिनेटली हियर टू स्टे. 2 ऑफ कप्स है, तो क्लियरली आप और आपके पर्सन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स क्लियरली शो मी दैट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप और आपके पर्सन जा सकते हैं विथ द एफर्ट्स, विथ द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड. आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ आगे इस रिलेशनशिप को लेकर के जा सकते हैं. जहाँ तक रही लोगों की, जो लोग नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, येस देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन ऑन द कार्ड्स. इट डिपेंड्स, और एक्चुअली आई शुड से इट डजंट इवन मैटर कि कौन वो पहल कर रहा है. इफ़ यू फील योर पर्सन इज पुटिंग इन द एफर्ट, अगर आपको लग रहा है समथिंग इज लैकिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, बट यू नो यू कैन असेस द सिचुएशन फॉर योर सेल्फ एंड टेक दैट मूव. बट जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, पॉजिटिव, एंड इंटेंशंस उनकी यही है कि वो आपके साथ आगे इस रिलेशनशिप को लेकर के जाएं. So with that, I'll take your leave, people who've chosen pile number 1. Thanks a lot for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care. आइए देखते जिन्होंने पीच मून स्टोन क्रिस्टल चूज किया है पाइल नंबर 2. What is in store for you? आपके पर्सन के बारे में, आपके रिलेशनशिप को लेकर के फीलिंग्स, इंटेंशंस, फाइनल आउटकम, रिकन्सिलिएशन क्या है कार्ड्स पर. आइए देखते हैं. आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, बट इस रिलेशनशिप के साथ डेफिनेटली रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं. एक यू नो एक स्टैग्नेंसी है जो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं. शायद कोई डिसीजन बनाना है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है दैट थिंग्स आर नॉट दैट यू नो सीरियस एट दिस पॉइंट इन टाइम. और मे बी आई शुड से कि उनको ये फीलिंग है कि अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कमिटमेंट 100% दिखाना या कोई डिसीजन लेना. तो आपके पर्सन अभी दे आर टेकिंग इट स्लो एंड स्टडी, बट देयर इंटेंशंस आर क्लियर. इवन दो वो बहुत स्लोली चल रहे हैं, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम यू. दे नो दैट दिस सिचुएशन कैन बी यू नो अंडर देयर कंट्रोल. थिंग्स कैन गो अकॉर्डिंग टू देम, एंड this relationship, this partnership is here to stay. Your person's message is also clear. For a lot of you, maybe there is a third person who has entered this relationship, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है of a 3-party situation that might be troubling your person, and उनको थोड़ा सा ये बात तंग भी कर रही है बिकॉज उनके एफर्ट्स, वो इतना एफर्ट डाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको आपकी तरफ से भी वो इतना ज़्यादा एफर्ट दिख नहीं रहा है. So maybe it is the social, you know, pressure that a person has entered your relationship and now it's creating havoc for you and your person. But इतना मैं आपको बता दूं कि आपके और आपके पर्सन की पार्टनरशिप
आगे ज़रूर जाएगी. Your person is definitely in love with you. Your person is attracted to you. But in this particular pile, there is an intrusion of someone. There is an intrusion of somebody in this relationship जिसको हटाना ज़रूरी है. It could be a female. It could be a mother figure. Some elder woman who is there in this relationship and is trying to create issues for you and your person. For a lot of you, you could be having issues with your person, but your person is just taking it silent. Your person is just being very mature. React नहीं कर रहे हैं. They don't want to give signs to you. They don't want to give signs to your person, to the people around them. They are still understanding the final outcome, the connection at what this relationship is. आपके person खुद ही इतने confused हो रहे हैं क्योंकि उनको ये decision बहुत शायद जल्दी बनाना है. शायद आपकी तरफ से काफ़ी pressure है. So your person also, for a lot of you, your person might have seen you with somebody, या फिर आपने उनको किसी के साथ देख लिया होगा. It could be a misunderstanding. ज़रूरी नहीं है कि that there was cheating involved, but whatever misunderstanding was, it was. Your person needs to, take time. They need to heal. They need to, intoxicate themselves from whatever they are thinking, because they are thinking on very different lines. Maybe for a lot of you, उन्होंने यही सोच लिया है कि you were past. Maybe they've thought about it कि शायद ये relationship अब work नहीं कर सकता. You were the best thing that happened to them, but maybe this was not the God's will. This was not the divine plan. That's what your person has maybe thought about it. But let me tell you, change is on the cards. Things are going to get settled between you and your person. And this is a divine plan. This is a divine message that you and your person will be able to be together. आप एफर्ट डालेंगे, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन ऑन द कार्ड्स, देर इज़ अ रीयूनियन, सो देर इज़ अ पैचअप फॉर यू एंड योर पर्सन. बट आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप, हो सकता है चीज़ों में टाइम लगेगा, बिकॉज ये छोटी मोटी बात पर आपकी लड़ाई नहीं हुई है, एक छोटी मोटी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई. दे हैव गॉन टू फार, बट योर पर्सन डेफिनेटली बिलीव्स इन द डिवाइन प्लान. योर पर्सन बिलीव्स इन अ न्यू बिगिनिंग दैट दे आर अवेटिंग, that there will be change. There is maybe आपके person की gut feeling उनको बता रही है that this is not the end, and that's why your person is just taking their own sweet time to get back, because they don't want to do anything in a hurry. And your person is definitely, they want to get the best of this relationship. तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि सिर्फ देते रहें या सिर्फ लेते रहें, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप को चलने दें. वो चाहते हैं रिलेशनशिप चले इन द बेस्ट इंटरेस्ट, एंड दे आर जस्ट taking its healing time. They're just taking some more time, physically, mentally, emotionally, and then with all the power they will come and contact you. They are waiting for the perfect timing so that you and your person's inspirations can be fulfilled. The doors that are closed, which were closed in the past, will open for you. So you and your person need to understand that yes, while we are waiting for the perfect timing, ऐसा ना हो कि ये टाइम निकल जाए, ऐसा ना हो कि प्रोक्रेस्टिनेट करते करते 2 महीने 2.5 महीने निकल जाएं और चीज़ें ना बने. So that reality check needs to come from you and your person. The walls that you have built around yourself need to be closed right now. They need to be removed right now. और इस रिलेशनशिप को एक अहमियत देने की ज़रूरत है जो शायद आप अभी नहीं दे रहे हैं. That fire to really make this relationship work is missing from you as well as your person. आपके person प्यार करते हैं आपको, but बहुत confused हैं आपको और अपने relationship को लेकर के. So what is the important thing right now is that you need to work on this relationship. ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ही मेहनत करेंगे या आपके पर्सन ही कांटेक्ट करेंगे तो आप रिकनसाइल करोगे. If you are loyal to your person, if you really want your person to come back, if you want to take this relationship forward, then just become innocent like a child. Children don't think who मैं करूँगा तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी या वो नहीं कर सकता. This is either it's very childlike or it's very mature. So let's not get into this कि कौन किसको कांटेक्ट कर रहा है. let's just take justice. Let things get balanced, and I think have a clear heart, have an open mind towards your person.
बात करिए अपने पर्सन से, जो दिल में चीज़ें हैं, जो ये रुकावटें आ रही हैं आपके बीच में, क्योंकि ये रुकावटें आप दोनों की वजह से नहीं आ रही हैं. दीज आर मेनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, बिकॉज दैट एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, या इस रिलेशनशिप के वो जो एक ठप्पा लगना है ऑफ गेटिंग पास्ट, वो आपके रिलेशनशिप में नहीं लग रहा है. एंड दैट्स द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स. दैट्स द रियल नीड ऑफ द आर, कि आप उसको प्लीज करने में लगे हुए हैं, जो इस रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज योर एनर्जी and your person's energy, and that right now is not being tapped. Instead आप दुनिया को प्लीज करने में लगे हुए हैं, किसी बड़े एल्डर पर्सन को प्लीज करने में लगे हुए हैं. you're there for the world, बट आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, and that's what is hurting your person. They want to start a family with you. They want to take this relationship forward. They want the bond to get stronger, and वो बहुत determined है. लेकिन क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि उनको आपकी तरफ से सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन का विक्ट्री के ऊपर से विश्वास हट रहा है. वो थोड़े से डर रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग टू बी द फाइनल आउटकम ऑफ आवर रिलेशनशिप, या मैं कितनी पहल करूं या मैं कितनी नहीं करूं, एफर्ट डालना बनता भी है या नहीं बनता. ऑल दोज काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स are there. अगर आज इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो कल कितनी होगी. That's the, yes, absolutely, confusion is on the cards. They are weighing the pros and cons of this relationship, and they need a final answer. They need that signal that yes, this relationship is worth holding. इसको मैं preserve करके तो रखूँ, तो रखूँ भी और मुझे result ना मिले, then what's the point? And this is what your person is asking for. So yes, definitely this is a divine plan. This relationship calls for a divine calling. Mystically आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, miracles are on the way, but my suggestion to you would be to give your person that signal, give your person that sign that yes, you yourself are also interested, और उनको इतना confuse होने की ज़रूरत नहीं है, because at the end of the day it's you and them who matter and not the rest of the world. So with that, I take your leave, people who've chosen pile number 2. Thank you so much for watching today's session. I'll be coming back with more such readings. Till then, please take care of yourself, and also do comment, keep commenting on the channel. Do let me know if the reading was resonant. Let me know if it was beneficial, if it was resonant with you. Please leave your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल. क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट मूव, reconciliation, whatever is on the cards. Let's see. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, लेट मी टेल यू, बहुत प्यार है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के मन में. मे बी यू माइट बी in a no contact relationship, but your person is definitely expecting a reunion, and your person is going to make the effort. वेट कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो. परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि अभी तक शायद कोई कांटेक्ट आपने किया नहीं है. वो जिस एक्सपेक्टेशन में है उससे वो तंग भी हो रहे हैं, बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देम. एंड वो आपसे जो बातें कहना चाहते हैं, जो आपसे अपनी मन की बात बताना चाहते हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू लेट यू नो दैट. सो येस, देयर इज डेफिनेटली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कमिट, गैप हो गया है आपके और आपके पर्सन के बीच में, बट प्यार कहीं नहीं गया. एंड एक बार जब बात स्टार्ट होगी तो ये जो वॉल्स हैं अभी जो बन गई हैं ये भी हट जाएंगी. Celebration is on the cards for people who've chosen pile number 3, and your person definitely wants that आपका और आपका बहुत ही जल्दी आपके और आपके पर्सन का कोई ना कोई एक सेरेमनी हो जाए, एक कमिटमेंट हो जाए. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, एंड उसके लिए मतलब दे आर वेरी डिटर्मिन्ड. दे आर वांटिंग टू जस्ट गेन विक्ट्री व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप. आपके और आपके पर्सन के बीच में वो मतलब पूरी दुनिया हटा सकते हैं फॉर यू to be theirs. Pile number 3 जिन्होंने चूज करी है, definitely your person's feelings and intentions are very clear कि वो चाहते हैं कि बस आप और वो एक साथ हों. You get married, you get into a ceremony, and also मतलब एक एक चीज़ आपकी उनके लिए इतनी मैटर करती है. They're looking for you and they love you unconditionally. Your person's
intentions and messages are very clear that they love you unintentionally, they feel you, they want to be with you. Maybe they are just waiting कि जैसे पहले चीज़ें इतनी बढ़िया थी आज भी वैसी ही हो जाए, but they are just hoping कि कैसे उनको आपको मनाना है या कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है. दे आर थिंकिंग ऑफ यू एज फैमिली, दे आर थिंकिंग ऑफ द रिलेशनशिप एज अ यू बोथ एज वन एंटिटी. ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं. एंड आई होप दैट दिस वेट गेट्स ओवर फॉर देम, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट करने की. एंड माई सजेशन टू यू वुड ऑल्सो बी that don't wait for their next move. You must contact your person, because नहीं तो ये बहुत negativity में change हो जाएगा. Right now their love for you is too much, so they will not take anything in the wrong manner. They are going to be surrendering to you. They are going to be their true self in front of you. But अगर ज़्यादा डिले होता गया तो आपके पर्सन की एनर्जीज चेंज हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है. बहुत सारे लोग इसमें आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं. जितनी कम आपकी बात होगी आपके पर्सन से, या जितने दिन आप लगाओगे अपने पर्सन से बात करने में, या जो लोग कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, लेट मी टेल यू, ट्राई टू गेट थिंग्स सॉर्टेड. ट्राई कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई सेरेमनी या कुछ हो जाए, क्योंकि ना इसमें लोगों के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. सो यू हैव मेड द बेस्ट प्रोग्रेस इन योर लव life daily. So the best would be to make that effort and tell your feelings and emotions and actions to your person. Also, अगर आपको अपनी families को बताना है, if you're confused about letting your people know, then this is the right time that you need to let your people know, let your parents and family know about this relationship, so that you're able to balance out things, so that उनको भी clear हो जाए कि this is what is in your mind, your work energy. Basically, this is a time for you and your person to be in one energy, one entity, which is a positive entity. And आपका जो प्यार है एक दूसरे के लिए, your hands, your heart, everything will be activated towards each other. And this is a time for you to heal this relationship, as well as make things work for you for the future. So आप अपने और अपने person की feelings को एक I would say it should be an everyday process for you and your person. Everything about you and your person, this relationship has to be like breathing. आप रोज इनहेल एक्सेल करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. ये रिलेशनशिप उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, विदाउट रियली गिविंग इट दैट कि हम कुछ नया कर रहे हैं, देखो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं. दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू नीड टू ट्रीट ईच अदर एज अ प्रेशियस एंटिटी, and be sensitive to each other's requests. You need to talk to each other. और please अपने relationship में किसी को आने मत दीजिएगा, because there is a full-on chance of a three-party situation. I see people interfering in your relationship, creating problems for you, and that's because आपके और आपके person में थोड़ी कम बातचीत है, आपके और आपके person में थोड़ा सा कुछ ऐसी एक air है which needs to be cleansed, and love and prosperity should be there, because आपके person आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं. उनका नेक्स्ट मूव भी अब सीधा प्रपोजल का ही होना है. लेकिन उससे पहले जो ये 3-party सिचुएशन बन सकती है, जो ये नेगेटिविटीज़ आ सकती हैं, उनको हटाना शुड बी द मेन आइडिया ऑफ दिस रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन विल रियली हेल्प यू बोथ. शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे ने नहीं कही हैं एक दूसरे को. एंड आई एम अगेन वार्निंग यू अगेंस्ट नेगेटिविटी, बिट्रेयल, डिस्ट्रक्शन and people interfering in this relationship. It's like a warning for you. अपने person को भी संभाल के रखिए, प्यार करिए, सेंसिटिव हो जाइए उनके लिए, उनकी बातों की अहमियत रखिए. उनको ये ना फील हो कि ये रिलेशनशिप एक स्ट्रगल बनता जा रहा है. They should definitely feel that you and them make a wonderful energy together. You and them together are the best thing that could be there. कि ऐसी फीलिंग्स आपको अपने पर्सन के अंदर क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके मन में ये बातें हैं, बट सीइंग द बिहेवियर, सीइंग द करंट सिनारियो, दे आर गेटिंग अ लिटिल जिटरी. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन. तो ये रिलेशनशिप एक स्ट्रगल ना बन जाए आपके और आपके पर्सन के लिए. और ये जो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, इस वेट को जल्दी पूरा करिएगा. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, मेक दैट बैलेंस, मेक दैट मूव. Your relationship is here to stay. The partnership is here to move forward. And don't hurt your person's expectations. Do not
टेक हिम फॉर ग्रांटेड और टेक हर फॉर ग्रांटेड. दे शुड नॉट फील कि आपने सारा कुछ ही उनके ऊपर डाल दिया है. इट हैज़ टू बी अ गिव एंड टेक. इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड सिनारियो इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि मैं यही देख रही हूँ कि एक पर्सन का एफर्ट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर, या एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरे का नहीं है. सो दैट एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी फुल हर्ट in this relationship. 2 months from now, people who've chosen pile number 2, pile number 3, I do see a big change. I see commitment on the cards. I see interdependence on the cards for you and your person. और जैसा relationship, एक purity, एक prosperity जो आप चाह रहे हो, आप और आपके पर्सन, एंड स्पेशली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड प्योरिटी चाह रहे हैं. दे वांट अबंडेंस ऑफ लव. वो भी आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं और आपसे भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, विच मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके पर्सन को वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होती हुई दिख रही हैं. एंड दैट्स द रीज़न दिस कन्फ्यूजन इज कमिंग, that what next to be done in this relationship. They want to take it forward with you. They want a change for you. आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं. They want to enjoy life with you. And of course, when all this is on their mind, it's definitely hinting that for a lot of you, this person definitely is thinking of marriage with you. So people who chose pile number 3, आपके person की intentions काफ़ी clear हैं, काफ़ी rock solid है उनका प्यार आपके लिए, उनकी determination भी काफ़ी तगड़ी है. But don't let your non-action or your little less efforts ruin this relationship. So whatever the cards have suggested, I hope that helps you and this reading was resonant with you. Let me know if it was, and leave your suggestions and comments in the chat box, in the description, in the comments below. I'll be happy to read them and give you out answers. I'll be happy to make new videos for you on the general suggestions if you have any. So yeah, let me know anything that's on your mind and I'll see you soon. Do like, share and subscribe to my channel. Take care of yourself till I meet you next time.